So attendance till 23rd July and all the materials, rubrics, and same time I have also uploaded ebook. Two ebooks are there, soft copy. That's really very nice. ऑथर्स जो है एक पी सुब्बाराव की है, एक माइकल हिट की है, एक हमारा इंडियन ऑथर है, एक इंटरनेशनल ऑथर है. Both are really very good. If you feel, if you want to gain further, if you want to get the deeper insight for strategic management, you can refer those books, and those books are really very nice. So please check it out. दो बुक्स है जो काफी अच्छी है, आप उसको रीड भी कर सकते हो अपने रेफरेंसेस के लिए, सेम टाइम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आप उसे रिफर कर सकते हो. नाउ attendance is done. Rubrics, please check out rubrics and tell me the last date for the same. 30th August. Yes, good. So how many questions are there? 4, right? 4 questions are there, and it will give you 20 marks. We have only one rubrics, and that is assignment question. Total 4 questions are there, and it will give you 20 marks. But make sure, I expect good answers. You need to elaborate all the questions in detail. Whatever the answers are there, whatever the points are there, I want in detail explanation of each and every point. Each and every question must start with the basic introduction, definition, then points, main points, what are the main points are there, and at last it must end with conclusion. This is the way I want your answers to be written. It should start with the introduction, then definition, then main points, and at last conclusion. And I expect practical examples should be there. Examples should be there in your answers. Is it clear to you guys? Okay, thanks. So now let's go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights, and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. What is this, students? ये क्या है? The screen that is visible to you, the slide that is visible to you. What is this? Forces driving industry competition. This is the point that we have done in the last session. But may I have the name of this point, please?
Yes, guys, may I have the name of this question, please? Sorry, guys. Uh, we have seen Porter's five force model. It's a good one. It forces, makes your strategy sometimes good, sometimes value creating, sometimes value reducing too. After the study of these five forces, after the study of remote environment, after the study of external environment, now the next points are these 3 points: key success factors, driving forces, and strategic group mapping. Now, key success factor. We'll start with the key success factors. कोई भी कंपनी होगी तो उसके पास कुछ न कुछ ऐसा फैक्टर होगा कि जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो रहे. इट कैन बी एनीथिंग. It can be anything. It can be low cost product. It can be differentiation product. It can be anything. It can be their machinery. It can be their technologies. It can be anything. But the sole credit of the company success goes to those factors. तो ऐसे फैक्टर्स को आप की सक्सेस फैक्टर्स बोल सकते हो. The second one is driving forces. ड्राइविंग फोर्सेस मीन्स ऐसे फोर्सेस जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है. That may be from external, majority will be from external only, that may be from internal, and it depends on business, on services, and all those things. Now, the next one is strategic group mapping. Strategic group mapping is to map your company
or we can say to float your company on the basis of price and the area that they have captured, or you can say the market share that they have captured. So these are the 3 points that we are going to discuss in today's session. So let's start. I have summarized the points, or you can say I have briefly make you aware about these points. Now let's see in detail how it works. The first is KSF, की सक्सेस फैक्टर. ये आपको वन लाइनर में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है. KSF means key success factors. Now KSF are the product attributes. आपकी प्रोडक्ट के ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट मार्केट में बढ़िया चल रही है, जैसे कि मैगी में वी गाइज आर अवेयर दैट यस उसमें लीड है, उसमें ये है, उसमें वो है, बट फिर भी आज आप देखोगे तो मार्केट में चल रही है. उसका मार्केट शेयर भी काफी बढ़िया है. क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स. एप्पल का आईफोन जो है वो भी मार्केट में चल रहा है. कंपिटेंसीज, आपकी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, उसके फीचर्स, उसके स्पेसिफिकेशंस, उसकी कंपिटेंसीज, कंपेटिटिव कैपेबिलिटीज जो कंपनी के पास है, ऐसी कैपेबिलिटीज जो मार्केट में किसी दूसरे के पास नहीं है, जैसे कि ब्लैकबेरी की सिक्योरिटी वाली कैपेबिलिटीज. टिल डेट किसी ने भी ब्लैकबेरी के फोन को हैक नहीं किया या तो कर नहीं पाया. एंड मार्केट अचीवमेंट्स, मार्केट की ऐसी अचीवमेंट्स जिसकी इम्पैक्ट आपके कस्टमर्स के ऊपर सबसे ज्यादा आएगी कि भैया सर ये कंपनी के पास तो ये अचीवमेंट है, तो हमें इसी कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो परचेस करनी चाहिए. जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये तो सिंपल है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, बट फिर भी बता रहा हूँ. ग्लोबल यूरो एनसीएपी जो कार की सेफ्टी रेटिंग देता है, 5 स्टार, 4 स्टार, 1 स्टार. तो अकॉर्डिंग टू जिस कार को 5 स्टार रेटिंग मिला है, जैसे कि टाटा की कार है तो मेजोरिटी उसको 5 स्टार मिला है, नेक्सॉन हो या फिर हैरियर हो या फिर कोई भी हो, तो मतलब ऐसे ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो वहाँ पे आपका ये अचीवमेंट्स है, एंड आपके जो अचीवमेंट्स है उसकी ग्रेटर इम्पैक्ट जो है वो आपकी फ्यूचर सक्सेस के ऊपर आएगी. आपके मार्केट प्लेस में जो आपका स्टेटस है, जो पोजीशन है, जो चीज आप होल्ड कर रहे हो उसके ऊपर आएगी. So key success factor is nothing but we can say a product attributes, competencies, achievements and all those things. And because of that, you can easily grab good market share in the marketplace. Now, the factors that are necessary conditions for success in a given market. ऐसे factors जो अगर आपके पास है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, अगर वो नहीं है तो आप मार्केट में से किक आउट हो जाओगे. जैसे कि अगर हम बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में की सक्सेस फैक्टर क्या हो सकता है? कोई मुझे बता सकता है? टेलीकॉम इंडस्ट्री में की सक्सेस फैक्टर, कैन एनीवन टेल मी? मैंने टाइप करके रखा है, नो प्राइजेस, सॉरी गलत जवाब. नो. To certain extent data is not matter but call quality matter. Yes, this is the answer. 3 चीजें जो है वो मैटर करती है: कवरेज, नेटवर्क रीच एंड बैंडविड्थ. टेलीकॉम इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए आप भले ही फ्री में दे दो, रिलायंस ने फ्री में ही दिया था, रिलायंस जियो, बट अगर वहां पे कॉल की क्वालिटी या तो नेटवर्क नहीं आ रहा हो, नेटवर्क की रीच कम हो, या तो कवरेज कम हो, या तो बैंडविड्थ जो हमें हर्ट्स चाहिए एक्चुअली
वो कॉल करने के लिए, इंटरनेट का यूज करने के लिए अगर वो नहीं मिल रहा है, देन इट्स ऑफ नो यूज। गाइस, अगर आपको याद है तो पुराना टाइम में हज जब था, वोडाफोन से पहले हज था, तो उसकी एक एड आती थी, वेर एवर यू गो अवर नेटवर्क फॉलोज। शायद आपने ये एड सुनी होगी या तो देखी होगी। इट वॉज क्वाइट गुड वन, छोटा पप्पी भी आता था उसमें। एंड उस टाइम पे हज का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा था, क्योंकि उसके लिए वो की सक्सेस फैक्टर था, वेर एवर यू गो अवर नेटवर्क फॉलोज। मार्केट मार्केट में हज जो है वो कॉस्टली था सबसे ज्यादा, बट फिर भी हो सकता था because of its network. So network and coverage is the key success factor for telecom industry. तो इसी हिसाब से सभी इंडस्ट्री में अलग अलग की सक्सेस फैक्टर हो सकते हैं। आपके बिजनेस के भी कुछ की सक्सेस फैक्टर हो सकते हैं। So a key success factor is a performance area of critical importance in achieving consistently high productivity. वो आपको तभी मिल सकती है जब आपके पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हो जिसकी वजह से आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सको। Now, KSF are attributes that spell the difference between profit or loss. अगर आपके पास बढ़िया KSF है, की सक्सेस फैक्टर्स है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। लॉस के तो कोई चांसेस ही नहीं है। दो एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे आपको बात बताऊंगा, एक कॉम्पिटिटिव सक्सेस और फेल्यूर। दो एग्जांपल है मेरे पास। एक तो है किंगफिशर बियर, वी कैन से यूबी होल्डिंग कंपनी जो है विजय माल्या की है, यूनाइटेड ब्रूवरीज। और दूसरी उसी की कंपनी है किंगफिशर एयरलाइंस। अब मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, एग्जांपल्स दोनों क्लियर है। एक कंपनी सक्सेसफुल है, दूसरी कंपनी फेल है। The first one, United Breweries, is successful because of its machines, because of its pulping, extracting capacities. And the second one is failure because they don't have any type of KSF, key success factors they don't possess, and that's why they are no more available in the market. So key success factors are the most important to be in the market, to be on the top, to get the success, to earn the profits. KSF are must. ना ये कुछ कॉमन टाइप्स है केएसएफ के। टेक्नोलॉजी रिलेटेड केएसएफ, कुछ कंपनीज है जिसके पास टेक्नोलॉजी के रिलेटेड केएसएफ है। कुछ कंपनीज है जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड केएसएफ है। जैसे कि एवियन कंपनी में आपको बताऊं, एवियन कंपनी जो है ये मिनरल वाटर बनाती है। विराट कोहली जिसका वो पानी पीते हैं, 650 रुपीज़ या फिर 700 रुपीज़ पर लीटर उसका रेट है। तो बढ़िया है। तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड केएसएफ वो कंपनी के पास है, दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। बालाजी जो है, बालाजी शेल पेट्रोल पंप, कोका कोला, अनदर वन दैट इज पेप्सिको एंड मेनी मोर, दे डू हैव रियली वेरी नाइस डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड केएसएफ। उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आज मार्केट में काफ़ी आगे बढ़ गए, just because of proper distribution channel. देन मार्केटिंग रिलेटेड केएसएफ, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी, एचयूएल, आईटीसी। दिस आर द कंपनीज जिसका मार्केटिंग काफ़ी बढ़िया है। देन स्किल्स एंड कैपेबिलिटी रिलेटेड केएसएफ, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा इन्फोसिस का, गूगल का, एप्पल का। नो डाउट एप्पल जो है वो टेक्नोलॉजी में भी आगे है एंड स्किल्स एंड कैपेबिलिटी में भी आगे है, बट यहाँ पे स्किल्स एंड कैपेबिलिटी में गूगल जो है वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ नया हो रहा है। यहाँ पे हम टेस्ला का भी नाम दे सकते हैं, हाइपरलूप का भी नाम दे सकते हैं, स्पेस एक्स का भी नाम दे सकते हैं। सो देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। सो दिस आर द कॉमन टाइप्स ऑफ केसेस दैट वन शुड हैव। अगर उसके पास इसमें से कोई भी केएसएफ है तो बंदा आसानी से सक्सेसफुल हो सकता है, मार्केट में सर्वाइव कर सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। अगर नहीं है तो यहाँ पे उसे थोड़ा सोचना पड़ेगा, जोर लगा के। नाउ दिस आर द एग्जांपल्स, यू प्लीज चेक इट आउट।
Guys, any example from your side? These are the examples. Now, any example from your side, from your experiences? Now, the next one is driving forces. Industry conditions change because important forces are driving industry participants. As I told you, majority of that belongs to the external environment. External environment से ही ये belongs करते हैं. Sanitizers, PPE kit, mask, and all other things. ये इंडस्ट्री पहले इतना एक्टिव नहीं थी. इंडस्ट्रीज थी क्योंकि मास्क तो पहले भी डॉक्टर्स पहनते ही थे. सैनिटाइजर्स पहले ही डॉक्टर इस्तेमाल करते ही थे. बट ये इतना यू नो ब्लास्ट नहीं था इसमें. बट बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इन चीजों के यूज में काफी बढ़ोतरी आ गई. So industry conditions change because important forces are driving industry participants, that are competitors, customers and suppliers. आज सैनिटाइजर्स का यूज बढ़ाया तो किसने बढ़ाया? हम लोगों ने बढ़ाया. मास्क का यूज किया तो हम लोगों ने ही किया. कस्टमर्स. सो वी आर द ड्राइविंग फोर्सेस. हमारे competitors, they are also our driving forces, and suppliers, they are also the driving forces. Apart from that, the entire external environment is also belongs to the driving forces itself. The driving forces is an industry are the major underlying cause of changing industry and competitive conditions. The outer ring of macro environment and inner ring of macro environment. These are the two factors, or even we can say the macro environment at all is going to become driving forces for your business. आपके बिजनेस के लिए वो ड्राइविंग फोर्स जो है वो रहेगा.
आपका बिजनेस कितना चलेगा, कितना आगे बढ़ेगा, एंड मेनी मोर थिंग्स। तो उसके लिए हमारे पास एक वेरी सिंपल प्रोसेस है। ओनली 3 steps आर देयर। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई इंडस्ट्रीज ड्राइविंग फोर्सेस। इंडस्ट्री को कौन चला रहा है, ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वेदर इट इज योर कस्टमर्स, whether it is your suppliers, whether it is your competitors, whether it is government, and so on. So the first thing you have to identify is industry's driving forces. आपकी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप हो उसे कौन चला रहा है। Then assessing the impact of the driving forces, किसकी impact कितनी है। Are the driving forces causing demand for the industry's produce to increase or decrease? जो भी ड्राइविंग फोर्सेस है उसकी वजह से क्या आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड जो है वो बढ़ रही है या तो कम हो रही है। सेकंड स्टेप में आपको ये आइडेंटिफाई करना है, आर द ड्राइविंग फोर्सेस एक्टिंग टू मेक कंपटीशन मोर और लेस इंटेंस। जो भी ड्राइविंग फोर्सेस है वो कंपटीशन को ज्यादा बढ़ा रही है या तो कम कर रही है, ये भी आपको चेक करना है। पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि इंडस्ट्री के ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन से है। जब आपको ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में पता चल जाए तो सेकंड पॉइंट है आपका उसका असेसमेंट एंड चेकआउट करना है क्या कि भाई वो ड्राइविंग फोर्सेस की वजह से इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसकी डिमांड बढ़ रही है या तो कम हो रही है। दूसरी जो है उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो ड्राइविंग फोर्सेस की वजह से कंपटीशन बढ़ रही है या तो कम हो रही है। तीसरी जो है उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है will the driving force leads to higher or lower industry profitability। ये ड्राइविंग फोर्सेस जो है उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इम्पैक्ट आता है। whether it will help to increase the profit or it will help to reduce the profit in negative sense I'm talking। तो ये आपको चेक करना है। एंड एट लास्ट थर्ड स्टेप, the link between driving force and strategy, how you are going to establish that link। जो ड्राइविंग फोर्सेस है और जो स्ट्रेटेजी है उन दोनों के बीच में आप लिंक को कैसे एस्टैब्लिश करोगे एंड हाउ यू कैन टेक द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दोज स्ट्रेटेजी। नाउ टाइप्स ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस, जैसे कि ग्रोइंग यूज ऑफ द इंटरनेट एंड इमर्जिंग न्यू इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आज आप सभी के पास फोन है। आप इमेजिन कीजिए कि आप लोग विपश्यना के शिविर करने गए हैं, 10 दिन या फिर 15 दिन आपके पास फोन ही नहीं है। It will be too much tough for you guys, not for you but for everyone, to spend 15 days without cell phone. Too much tough because of growing use of the internet। पहले इंटरनेट का इतना इस्तेमाल नहीं था। मुझे याद है अगर मैं बात करूं 1999 ओके और 2000 की या अर्ली 2000 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास भी मोबाइल था एंड उस टाइम पे पर मंथ, आप बिलीव नहीं करोगे बट यू कैन वेरीफाई द सेम विथ योर पेरेंट्स, आप डेट के साथ वेरीफाई कर सकते हो, हमें 50 MB का डेटा मिलता था। यस, पर मंथ, या यू हर्ड इट राइटली, पर मंथ 50 MB का डेटा मिलता था। देन लेटर ऑन धीरे धीरे वो 50 MB जो है वो कुछ महीनों बाद 500 MB में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद 1 GB में कन्वर्ट हुआ। पूरे महीने का 1 GB। एंड उसमें भी आप बिलीव नहीं करोगे कि उसमें भी हमारे पास डेटा पड़ा रहता था। हम स्पेयर में रखते थे 50 MB के आसपास, जो मंथ का लास्ट दिन होता था तब इस्तेमाल करते थे एक्सपायरी के टाइम पे। एंड आज अब देखिए डेली का 4-5 GB भी, यस डेली का 4-5 GB तो आराम से लोग यूज कर लेते हैं, वाईफाई लगा देते हैं। सो ग्रोइंग यूज ऑफ इंटरनेट, आप देख सकते हो कि इंटरनेट का यूज कितना हुआ है। इसकी वजह से उसकी जो भी सब सप्लीमेंट्रीज है वो कंपनीज कितनी ग्रो हुई है। वो फिर पेटीएम हो, मिंत्रा हो, ईबे हो, अमेजोन हो, कोई भी कंपनी आप ले लो, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, दे हैव ग्रोन लाइक एनीथिंग। देन इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, आज इंडस्ट्री का ग्लोबलाइजेशन कितना हो गया है।
एक छोटी सी कंपनी है राजकोट में, बट वो पूरे वर्ल्ड में अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर रही है. इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, देन चेंजेस इन लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री ग्रोथ रेट. इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो चेंज हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए. कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो काफी शाइन आउट कर रही है, कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो डार्क साइड में है, कुछ इंडस्ट्रीज बंद हो गई है. ये भी देखना है the changes in long term industry growth rate, whether it is positive or negative. And then who buys our product and how they use it, our end customers, or you can say the end users, whether our product is innovative or not. हमारी प्रोडक्ट इनोवेटिव है कि नहीं. स्कोडा कंपनी जो बढ़िया कंपनी है, उसकी एक टैगलाइन भी थी ऑब्सेस्ड विद क्वालिटी. दूसरी कंपनी जनरल मोटर्स की जो शेवरोलेट नाम है, बढ़िया कंपनी है, एकदम ए ग्रेड की प्रोडक्ट बनाती है, बट फिर भी मार्केट में नहीं चली, इंडिया में नहीं चली, इंडिया में से स्टेप बैक करना पड़ा. दूसरी ऐसी जो नई आई हुई कंपनीज है, वो भले ही उसके सेफ्टी रेटिंग्स नहीं है, बट फिर भी वो प्रोडक्ट बढ़िया चल रही है. सो द मेन पॉइंट इज हु बाइज द प्रोडक्ट एंड हाउ द product innovation, our product is innovative or the traditional one, technological change, process innovation, whether we have done it or not, marketing innovation, how you are going to marketize yourself, your product, your services. टेक्नोलॉजी में एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप पुराने जमाने की मारुति 800 कार देख लीजिए, एंड उसके बाद मारुति की ही ये दिस वन नाम भूल गया, जो 8-10 लाख की कार आती है, स्विफ्ट के ऊपर का मॉडल है, तो वो देख लीजिए आप. तो you can see a lot more changes in technological aspects. You can see a great, yes, yes, exactly, Ciaz, right, good one. तो वो कार देख लीजिए आप, मारुति 800 जब लॉन्च हुई थी और सियाज, तो दोनों के बीच में आपको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलेगा एंड प्रोसेस इनोवेशन भी देखने को मिलेगा. एंड अभी रिसेंटली जो मार्केट में एक हायर हायर रेंज की कार है, इंडिया में अभी तक नहीं है ये शायद, हमर इलेक्ट्रॉनिक, जनरल मोटर्स की हमर, शायद 4-5 करोड़ के आसपास उसकी प्राइस होगी, बट देख लेना आप, काफी बढ़िया है, वीडियोस उसके धूम मचा रहे हैं इंटरनेट पे. हमर जो इंडिया में आई थिंक 3 या 4 लोगों के पास है, पुराना मॉडल है. उसमें एक शायद हरभजन सिंह के पास भी है. So the technological changes in process innovation and marketing innovation. So these are the types of driving forces. Apart from that, entry or exit of major firms, Reliance, Jio सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. डिफ्यूजन ऑफ टेक्निकल नॉलेज, आपकी कंपनी के पास कितना टेक्निकल नॉलेज है, आप जो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज लॉन्च करने जा रहे हो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, मैनुअल. देन चेंजेस इन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है. जैसे कि नाउअडेज ऐसी कंपनी जो डिपेंड्स है, लाइक एफएमसीजी की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल होता है, एडिबल ऑयल. तो एडिबल ऑयल्स के रेट जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी बढ़ गए. जो पाम ऑयल पहले 1200 का आता था, वो आज 2000 रुपये का आ रहा है. तो ऑलमोस्ट 40% प्राइस जो है वो बढ़ गया है, सॉरी 80% प्राइसेस जो है उसके बढ़ गए हैं. तो वहाँ पे अपना प्रोडक्ट का प्राइस एमआरपी जो है वो नहीं बढ़ा सकते. सो चेंजेस इन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, ये भी ड्राइविंग फोर्सेस है. कंज्यूमर प्रेफरेंसेस शिफ्ट फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड टू नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एंड समटाइम्स नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टू स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट. कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज होते रहते हैं. नाउ हाउ टू सर्वाइव इन दैट यू हैव टू चेक इट आउट. Changes in degree of uncertainty and risk, government legislations, government policies, regulatory policies, changes in societal concern, attitudes, lifestyles, and all those things. All those things are known as driving forces, जो आपके बिजनेस को ड्राइव करते हैं. आपकी प्रोडक्ट चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट वहाँ पे सोसाइटल कंसर्न नहीं है, एटीट्यूड्स नहीं है, लाइफस्टाइल में लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, देन इट्स ऑफ
no use. So these all are the driving forces. Now the next step, or you can say the last one, is strategic group mapping, जो हम next session में start करेंगे. आज के लिए हम इतना रखते हैं guys. Any doubts for today's session? Okay, great. So we'll keep up to this only. That's it for the day. Thank you so much guys. Enjoy your day. Take care. Thank you.